آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن عباسی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں انتہائی اہم موضوع پر نظر ڈالیں گے۔ یہ موضوع ہے کراچی کے 3 بڑے نالوں کا، گجر نالہ، محمود آباد نالہ اور اورنگی ٹاؤن نالہ۔ ان نالوں کو ماڈل نالہ بنانے جا رہی ہے کراچی کی انتظامیہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں شدید بارشوں کے باعث جو شہر کراچی ڈوب جاتا ہے وہ نہ ڈوبے۔ ناظرین، آئیے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ مسائل میں گھرا شہر کراچی، جتنا بڑا شہر مسائل بھی لاتعداد۔ بڑے شہر کا ایک بڑا مسئلہ نالوں پر قائم تجاوزات۔ مرکزی نالوں پر ایک پورا شہر آباد کر دیا گیا، کئی فٹ نالوں کی جگہ گھر بنے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کراچی کے 27 نالوں پر تجاوزات قائم ہیں، کہیں 5 تو کہیں 80% تک تجاوزات ہیں۔ شیر شاہ نالے پر لیاری ندی سے اردو بازار تک مجموعی طور پر 80% تجاوزات ہیں۔ یونیورسٹی روڈ کے سونگل نالے پر 70% تجاوزات کا جنگل ہے۔ بنچور لائن سے مائی کولاچی تک سٹی نالے پر 70% تجاوزات ہیں۔ نیو کراچی کے نالوں پر 60% سے 30% تک تجاوزات ہیں۔ ان میں سب سے اہم نالہ ہے گجر نالہ۔ 13.5 کلومیٹر طویل نالے کا کوئی پرسان حال نہیں۔ گجر نالے پر ہزاروں گھر تعمیر ہیں۔ شہر کے بیشتر مقامات پر آپریشن تو ہوا، تاہم تجاوزات مافیا اتنا مضبوط اور منظم ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود دوبارہ ان نالوں پر تجاوزات بنا دیے جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں وہ تمام صورتحال آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں سے اس تمام تر صورتحال کا آغاز ہوا۔ سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیے کہ فوری طور پر نالے کے اوپر سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ اینٹی انکروچمنٹ سیل حرکت میں آیا اور کے ایم سی کی جانب سے تابڑ توڑ کارروائیاں دیکھنے میں آئیں۔ کراچی کے 3 بڑے نالوں کے اطراف میں جو مکانات، دکانیں تعمیر کی گئی تھی، ان تمام کو مسمار کرنا شروع کیا گیا، جس کے دوران شدید مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے بھاری نفری نے اس تمام تر آپریشن میں معاونت فراہم کی، لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے اس آپریشن کے بعد ان تمام اطراف کے مکانوں کو تو توڑ دیا گیا، دکانیں تو توڑ دی گئی، لیکن جو وعدے کیے تھے انتظامیہ کے وہ وعدے وفا نہ ہوئے۔ 90,000 روپے 6 مہینے میں ایک چیک دینا تھا، 4 چیک 3,60,000 روپے کے بنتے ہیں، جو کہ 2 سال میں انتظامیہ کو ان مکین کو ادا کرنے تھے جو کہ اطراف کے رہائشی تھے۔ ان کے مکانات ٹوٹ گئے، آشیانے برباد ہو گئے، لیکن چیکس نہیں ملے۔ آئیے چلیں گے آج کے پروگرام میں ان مکینوں سے رابطہ کریں گے، بات کرنے کی کوشش کریں گے کتنوں کو جو ہے وہ چیکس مل چکے ہیں اور کتنے ابھی بھی وہ چیکس کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال کیا کہتی ہے انتظامیہ کی کارکردگی پر؟ ان ماڈل نالوں کی تعمیرات کے لیے جو کام شروع کیا گیا تھا وہ کام کہاں تک پہنچا؟ آیا کہ وہ کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور اطراف کے مکین جو ہے وہ اب اپنے آشیانے ٹوٹنے کے بعد کس طرح گزر بسر کر رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں اینٹی انکروچمنٹ سیل کے سربراہ بشیر صدیقی سے اس تمام تر صورتحال میں موقف بھی جانیں گے، عوام سے بھی بات کریں گے، تینوں نالوں کے اطراف جن کے مکانات ٹوٹے۔ ناظرین، اس وقت محمود آباد نالے پہ ہم موجود ہیں۔ یہاں انکروچمنٹ کی گئی، تقریباً 450 کے قریب بتایا گیا ہے کہ دکانیں، مکانات جو ہے وہ مسمار کیے گئے۔ اس نالے کی تزئین و آرائش کے لیے جو غیر قانونی اطراف میں بنا دیے گئے تھے، انتظامیہ کی جانب سے ایک بڑا آپریشن دیکھنے میں آیا تھا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد یہ تمام تر شہر کے بڑے نالوں میں کارروائیاں کی گئیں، جس میں اورنگی نالہ ہے، گجر نالہ ہے، محمود آباد نالہ ہے۔ محمود آباد نالے میں اس وقت میں موجود ہوں۔ یہ تمام انکروچمنٹ جو ہے وہ 15 دن کے قریب جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہاں پر اب ترقیاتی کام جو ہے وہ شروع ہو گیا، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ تمام نالوں کو جو ہے وہ ماڈل نالہ بنایا جائے گا۔ جو برسات کے لیے کراچی ڈوبتا آیا ہے اس کو اب کے ڈوبنے نہیں دیا جائے گا۔ انہی نالوں کی مدد سے وہ تمام شہر بھر کا پانی جو ہے وہ ان میں داخل ہوگا اور اس کے بعد یہ پانی آگے جا کے سمندر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ جو رہی بات اطراف کے مکان ٹوٹنے کی، وہ مکانات جو 30 فٹ ٹوٹے گئے تھے، ان مکانات کو جو ہے وہ 2 سال کا کرایہ دیا جا رہا ہے۔ 90,000 روپے کے 4 چیکس دیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ نالا جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ گلی محلوں میں جو پانی داخل ہو جاتا تھا برساتی نالے کا، پورا زیر آب آ جاتے تھے، تاکہ جو ہے وہ پریکٹس دوبارہ نہ ہو سکے۔ یہ وہ مکانات ہیں جو توڑے گئے تھے۔ اب ان مکانات کے توڑنے کے حوالے سے بھی ایک جو عوام میں تشویش کی لہر ہے کہ کچھ مکینوں کو جو ہے وہ
पेमेंट्स नहीं हुई हैं, चेक्स नहीं दिए गए हैं। तो इस हवाले से जब बात की गई थी इंतजामिया से, तो इंतजामिया का कहना यह था कि जिसका 29 फीट तक आया है उसको चेक नहीं दिया गया है, जबकि 30 फीट जो है वो रखा गया है एक पैमाइश कि 30 फीट जिसके मकानात इस तमाम नाले की इंक्रोचमेंट में, हार्ड इंक्रोचमेंट में आए हैं, उन तमाम को जो है वो मसमार किया गया है और उनको जो है वो 2 साल का किराया दिया जा रहा है। ये तमाम मकानात जो नाले के अतराफ में इंक्रोचमेंट हो गई थी, हजारों की तादाद में ये मकानात थे जो ना सिर्फ इस महमूदाबाद नाले में, गुज्जर नाला, औरंगी नाला और भी दीगर नालों पे भी जो है वो सिलसिला जारी है गैर कानूनी तौर पे इमारतें बनाने का। लेकिन इन तमाम को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मसमार किया गया था और अब जो है वो काम शुरू कर दिया गया। इन तमाम नालों का जो अवाम है, अवाम इस तमाम तर सूरत हाल में क्या कहती है, वो अवाम का मौकिफ भी महमूदाबाद की, वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, कुछ महमूदाबाद के रिहायशी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके मकानात, दुकानें इस तमाम तरह ऑपरेशन में जद में आई हैं। वो चेक्स उनको मिले या ना मिले, ये तमाम क्या सूरत हाल है, ये भी जान लेते हैं अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप जब ये नाला में ऑपरेशन का सिलसिला जारी था तो आपका मकान टूटा है, घर टूटा है, दुकान थी, क्या था? मेरा मकान है, मेरा मकान भी थी और मकान भी था और दुकान भी थी। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि 2 साल के जो है वो 6 महीने में चेक्स दिए जाएंगे 90 हजार रुपए के। तो ये मकान जब आपने बनाया था तो ये गैर कानूनी लैंड थी, तजावजात थे या लीगल था? ये क्या प्रोसीजर क्या था जब आप बना रहे थे? सर, ये LSC2 महमूदाबाद की पट्टी पूरी लीज है। इंक्रोचमेंट आज भी मौजूद है, वो सामने इंक्रोचमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था इंक्रोचमेंट का हटाने के, इन्होंने हमारे लीज मकान तोड़ दिए। अच्छा, ये लीज जो थे मकान, ये कहाँ से लीज किए? KMC से सर, KMC से। KMC के लीज थे, DC लीज मकानात थे, KDA लीज मकानात नहीं थे? नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि वो जो 2 साल में 6 महीने पे चेक्स दे रहे हैं, तो वो कितने चेक आपको मिल गए? अभी तक एक चेक मुझे मिला बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला, किसी को भी कुछ नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, वो चेक जो मिला तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हुई है दारों के साथ आपकी? उनकी कॉल आई, बुलाया या क्या तरीके का? उन्होंने फोन करके बुलाया था और ये फायर ब्रिगेड की इमारत में हमें चेक दिया गया था बस, और वो भी सिर्फ एक दफा दिया है, इसके बाद नहीं मिला। और बहुत से तो लोग ऐसे उन गरीबों को मिला ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब जब ये मकान टूट गया, दुकान आपकी टूट गई, तो अब आप कहाँ रह रहे हैं, क्या तरीका है? सर, अब किराए पे रह रहे हैं, क्या करें? अब 12-15 हजार रुपए किराया, बाल बच्चों को लेके वहाँ शिफ्ट हो गए सर। ठीक है। इससे पहले जब आप यहाँ मकान बना रहे थे तो उसमें लीज में, KMC लीज में कितना खर्चा आया था? जमीन कितने की ली थी? सर, ये जमीन तो हमारी एक तरह से खानदानी थी। मेरी पैदाइश इसी घर में थी, इसी घर में मेरी अपना पैदाइशी, और ये 98 के अंदर मैंने लीज करवाया था सर। मैं हाथ जोड़ के इमरान खान से करता हूँ कि प्लीज खुदा रहा, हम इस आईनी मुल्क में रहते हैं, हमारे खिलाफ बगैर आईनी काम हुआ। ये पूरी लीज पटी है सर। ये पहले 98 में टूटा, इसके बाद 2016 में टूटा, इसके बाद ये अभी 2021 में टूटा। हर दफा हम ही कुर्बानी क्यों दे कराची को बनाने के लिए, और सामने वाला कुर्बानी नहीं दे। हालांकि जितनी गवर्नमेंट को जमीन चाहिए, जितनी चाहिए उससे ज्यादा जमीन सामने मौजूद है, मगर उन लोगों ने पथराव किया तो इसलिए उनकी जमीन नहीं टूटी। हम लोग अदालत में गए, अदालत ने बाकायदा हमें बनाने का भी हुक्म दिया, इनको हुक्म दिया कि इनको बनाने दिया जाए मकान। वो ऑर्डर आज भी हमारे पास मौजूद है, मगर उसके बावजूद, हाईकोर्ट की बात करो, इसके बावजूद हमारे मकान उन्होंने तोड़ दी। मैं इमरान खान साहब से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, सर खुदा के लिए हमारे पे जुल्म दर जुल्म हो चुका है, खुदा के लिए हमें इंसाफ, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये KMC लीज मकानात थे जो कि मसमार किए गए थे, KDA लीज मकानात नहीं थे। एक चेक जो है वो इनको इंतजामिया की जानिब से बुला के दे दिया गया है, बाकी 6 महीने पे बाकी 3 चेक बाकी हैं। महमूदाबाद की अवाम का ये मौकिफ है। दीगर इलाकों में जो इंक्रोचमेंट की गई है नालों में, वहाँ की आवाम क्या कहती है, ये भी जान लें। ये तो बहुत पुराने हम लोग रह रहे हैं, आज के नहीं है। ये बिल्कुल खाली था जिस टाइम हम यहाँ आए थे, सही है। उसके बाद हमने लिया, खरीदा, इस मकान को लिया है, बनाया, सब कुछ करा है। पहले आए जब तोड़ के चले गए, जब भी कुछ नहीं मिला, अब आए अब भी तोड़ के चले गए हैं, कोई एक पैसा नहीं मिला है। और अभी भी करके गए हैं तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये इस तरीके से परेशान है हम लोग, बहुत परेशान है। पानी की लाइन हमारी खत्म हो गई है, गैस की लाइन हमारी यहाँ से खत्म हो गई है, हम बहुत परेशान है। गटर का पानी हमारे आने लगा है, गटर हमारे यहाँ भर रहे हैं क्योंकि सारी लाइनें तोड़ दी हैं, कोई हल नहीं निकल रहा है ये। नाज़रीन, अब हम यहाँ पहुंचे हैं, गुज्जर नाला है ये, इसके अतराफ में भी तमाम हार्ड इंक्रोचमेंट जो थी वो मसमार कर दी गई थी, तमाम मकानात जो है वो तोड़ दिए गए थे, जो तामीर किए गए थे दोनों जानिब नाले के अतराफ में। यहाँ भी जो है वो नाले का तरक्याती काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ भी सीवरेज की लाइनों के लिए अलग जो गुजरगाह है वो बनाई जाएगी नाले की, जबकि बरसाती नाले के लिए जो है वो भी तरक्याती काम जो है इधर भी देखा जा रहा है कि शुरू हो गया है। 1.5 साल का टाइम फ्रेम है जो कम्प्लीट किया जाएगा, जिस दौरान
ऑपरेशन का सिलसिला था। काफी मुजाहमत का सामना रहा इस तमाम ड्राइव के दौरान, और तकरीबन यहाँ बताया जाता है कि 1700 के करीब गुजर नाले के अतराफ के जो मकानात थे, दुकानें थी, वो तमाम मसमार किए गए थे। वही सिलसिला है, 30 फीट का जो पैमाइश रखी गई, तमाम नालों में 30 फीट की पैमाइश के हिसाब से जो है वो मकानात, दुकानें जो आ रहे थे वो तमाम तोड़े गए हैं, और 30 फीट वालों को ही जो है वो 90 हजार रुपए के 4 चेक दिए जाएंगे, जो कि 2 साल का रेंट की मद में बताया जा रहा है कि दिए जाएंगे। इधर 1700 के करीब बताया गया कि मकानात, दुकानें जो है वो मसमार की गई थी। वैसे ही नाले, मॉडल नाले बनाया जाएगा इस इलाके को भी, और यहाँ से भी जो है माजी में बारिशों में जैसे इलाका डूबता और ज़ेरे आब आता था, तो वो भी इस तमाम तर सूरत हाल से अब महफूज रहेगा। इस इलाके की आवाम जिनके मकानात टूटे हैं, जिनको मुआवजा अब तक नहीं मिल सका, आया कि कितने लोगों को 1700 में से जो है वो मुआवजा मिल गया है। यहाँ भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि जब यहाँ पे इंक्रूजमेंट हो रही थी तो ये जो मकानात तोड़े गए हैं, तो मुआवजा जो है उनको मिला आप लोगों को? भाई मेरे मुआवजा किसी को दिया गया, किसी को नहीं दिया। ये कहकर इग्नोर कर दिया कि आपकी 30% जगह नहीं टूटी। और मैं आपको एक वादा कर दूं, ये मैं जो खड़ा हूँ ये फातिमा जिन्ना सोसाइटी है, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ST 21 है। ये इंक्रोचमेंट का चक्कर नहीं। जब मुझे ये बताया कि आधा काम ने घर बैठे हुए ऑर्डर कर दिया, तोड़ दो, यहाँ के देखा कि ये लोग किस तरह रह रहे, ये देखा कि किसने किस तरह रिहाइश बनाई है। मैं चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मैं मुतलबिस हूँ कि उनसे अपील करता हूँ, खुदारा आपने बेघर तो कर दिया, तोड़ के रोडों पे तो इनको कर दिया, इनको बसाएगा कौन? हुकूमत रियासत का काम है रिहाइश फराहम करना, रोजगार फराहम करना। इस रिहाइश के चक्कर में ये बेरोजगार भी हो गए हैं। लिहाजा मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है कि 90,000 में एक दीवार नहीं बनती। कल जिस टाइम ये आबाद हो रहे थे, नाले के दोनों तरफ में DC लीज दे रहा था, DC अंधा था, DC को नहीं पता था कल नाला बनेगा। इन गरीबों से पैसे लिए गए रिश्वत के तौर पर भी और वैसे फीस के नाम पर भी। जब इन्होंने अपने पाँव 5 2 रुपए इकट्ठे कर एक जगह बनाई और रहने का इंतजाम किया, तो आप आ गए चीफ जस्टिस का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा इसमें KDR मेरा प्लाट B65 है, जो कि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक हूँ। 89 की मेरी लीज है, 69 की अलॉटमेंट है। CBA का नक्शा पास है मेरे पास, हाउस बिल्डिंग की लोन का। तो बताए मैं इंक्रोचमेंट में कैसे आता हूँ? चीफ जस्टिस वादा करे ना कि तोड़ना क्या है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि गैस लगी हुई थी आपके घर में? मीटर था? गैस, बिजली, पानी सब कुछ है, और हम बाकायदा बिल पाबंदी से अदा करते हैं, और बिल यूटिलिटी अदा करने वाला अनलीगल नहीं होता कानून के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, एक ये पीछे जो मकान है ये अधूरा टूटा हुआ है, इसकी क्या वजह? वो उन्होंने इस तरह किया कि हमारे यहाँ जो पैमाइश हो रही थी ना, जिसने 2-4 हजार 10 हजार दे दिए, उधर फीता खींच दिया गया। क्योंकि पैमाइश करने वाला मेरी नॉलेज में अभी मुकम्मल नहीं है, मैंने सुना मोतिल है। क्योंकि जहाँ अपनी कौम को देखा, किसी चीज को देखा, उसको और इस आगे पीछे कर दिया। अच्छा, मुझे सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से एक मेरा सवाल है कि आप ये बताएं, वादा करें इस कौम पर कि आप तोड़ने के लिए किसको कह रहे हैं? इंक्रोचमेंट की बात है, तो फिर लीज वालों को क्यों तोड़ा जा रहा है? लीज के पैसे लेकर लीज की दी गई थी ना, क्या वो DC लीज है, KMC लीज है, KDA लीज है, गवर्नमेंट ने दी है। ठीक है, लेकिन KMC और DC लीज को कहा जाता है जब इंतजामिया को जरूरत पड़ेगी वो मसमार कर देगी। KDA में भी हजरत, KDA में भी लिखा हुआ है कि जब किसी प्रोजेक्ट के तहत हमें जगह की जरूरत पड़ेगी आप देंगे, हमें देने से इनकार नहीं है। हम प्रोजेक्ट को रुकावट में किसी में हाइल नहीं होना चाहते, लेकिन जो KDA आगे लिख रही है कि इस वक्त का मुआवजा हमें दे, हमारे जाते, हम तो इनकारी नहीं है। लेकिन 90,000 में आप बताएं लीज होगी या प्लाट खरीदा जाएगा या दीवारें बनेंगी? ठीक है। अच्छा, मुझे आप भी भाई बताइएगा कि आपका मकान किधर था, चेक मिला या नहीं मिला? हमें चेक नहीं मिला। इन्होंने एक तो नई पॉलिसी ये निकाली है कि जो घर है, अगर घर में आपने कोई किराए पे जगह दी हुई है तो उसे ये अपनी मर्जी से कमर्शियल कर देते हैं। जहाँ इनका दिल करा उसको चेक दे दिया, आप मुझे कह दिए कि आपका कमर्शियल है, आपने किराए पे दिया हुआ है। किराए पे दिया है लेकिन जगह तो है ना, आपने 14 फीट मेरी जगह ले ली है, हमें 1 टका नहीं दिया।
और अपनी मनमानी से आप आधे से ज्यादा पट्टी देखें, इनको कमर्शियल कर दिया। जहां इनका सिक्का चल रहा है, वो जो अभी खालिद साहब बात कर रहे थे, जो बंदा मुअत्तल है, लेकिन मुअत्तल नहीं, वो ऑन ड्यूटी है, वो आता है बस जहाँ पैदागिरी बनती है वो अपना काम करा के चले जाता है। यहाँ पे टोटल काम चला सेटिंग के ऊपर, क्योंकि जो ये हमारे अपना एसी है नईम सुमरो साहब, ये बिल्कुल फेयरली नहीं चल रहे, वो बंदों के आगे नहीं आते। ये स्टे लेकर आए हुए तो इनसे भागते हैं वो, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल आदमी हमारे जैसे के आगे वो आगे बातें करता है, कानून दिखाता है। तो यहाँ पर इन लोगों के साथ फेयर किसी के साथ भी नहीं हुआ, सबके साथ ज्यादती हुई है। ठीक है, अच्छा मुझे भाई आप भी बताइएगा कि आपका भी यहाँ पे मकान था? नहीं, मेरा मकान नहीं था यहाँ पर, मेरा मकान नहीं था। ठीक है, अच्छा आपका मकान था यहाँ? मेरा मकान है, अभी भी है। मेरे को इन्होंने 90,000 रुपए का चेक दिया है। मेरा एक कमरा था, मेरे पास थोड़ी सी जगह बची है, लिहाजा ये कि मैं 90,000 रुपए का चेक मेरी वालदा को मिला, मुझे तो खैर नहीं मिला, वालदा को मिला। उसके पीछे मेरा मकान भी था, वो भी इन्होंने तोड़ दिया। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, जहां तक इन्होंने निशान लगाए थे हमने कहा यहाँ तक तोड़ लें आप, लेकिन इन्होंने वहां से भी आगे बढ़ा के तोड़ दिया हमारा मकान। हमने चिल्लाया चीखा तो बड़ी मुश्किलों से इन लोगों ने थोड़ा सा हमारा छोड़ दिया, लेकिन कटिंग हमारी पूरी करके गए ये लोग। लिहाजा ये है कि 90,000 रुपए में वाकई ही सही कह रहे हैं बाबा के, दीवार नहीं बन सकती। आज भी मेरा मकान देख लें आप, ऐसे ही पड़ा है। अच्छा लिया कितने का था? मैंने अभी लेने वाले मेरे वालिद साहब हैं, हमें पता नहीं है इस बारे में। कितने सालों से यहाँ रिहाइश पजीर? मेरी पैदाइश इसी घर की है। अच्छा एक छोटी सी अर्ज है, गैस का बिल, बिजली का बिल सब लगा हुआ है मेरे घर में। मेरी पैदाइश इसी घर की है, मैं यहीं रहता हूँ, पैदा ही यहीं हूँ। ठीक है, अच्छा नाज़रीन ये सूरत हाल है गुज्जर नाले के अतराफ में। जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं मुताल्लिका इलाके के, वो इनके साथ नईम सुमरो वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। लीजें दी गई हैं, इंतजामिया की ही गफलत है, जिसके बाद ये किराए के मकानों में मकीन रह रहे हैं। सुई गैस जो है वो 60% किसी भी लीगल सोसाइटी हो, इलाका हो, वहां पे जब तक 60% आबादी नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है वो सुई गैस की लाइनें नहीं बिछाता। लेकिन यहाँ पर अगर ये मकानात इलीगल थे तो यहाँ पर गैस किसने दी, बिजली के मीटर किसने लगाए और पानी के कनेक्शन किसने फराम किए? ये तमाम तर सूरत हाल है गुज्जर नाले और इसके अतराफ में जो मकीन है वो सरापा एहतिजाज है, परेशान है कि 90,000 रुपए में जहाँ आज के दौर में एक दीवार भी नहीं खिंच पा रही, वहां पर 90,000 रुपए के 6 महीने में चेक दिए जा रहे हैं। 3,60,000 रुपए टोटल जो है वो 2 साल में अदा किए जाएंगे। 3,60,000 रुपए में जो है कोई मकान, कोई दुकान जो है इस वक्त शहर के किसी कोने में भी दस्तयाब नहीं है, जिसके बाइस ये किराए के मकानों में रहने पे मजबूर हैं। आला हुकाम से, इंतजामिया से जो है ये अपील करते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो चेक का सिलसिला भले बंद कर दिया जाए, लेकिन मुतबादिल जगह और रिहाइश के लिए इनको इनके नाम पर जो है वो जगह फराम की जाए। ये सूरत हाल थी गुज्जर नाले की। महमूदाबाद की सूरत हाल आपको दिखाई। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद औरंगी टाउन में क्या पोजीशन है ये भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन सूरत हाल ये है कराची के 3 बड़े नाले, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और ये औरंगी टाउन नाला। इनके अतराफ जो इंक्रोचमेंट की गई, कहीं 4,500 मकानात तोड़े गए, 17 किलोमीटर तो कहीं 13 किलोमीटर, कहीं 4 किलोमीटर। इस अतराफ में जितने गैर कानूनी तौर पे तामीरात की हुई थी वो तमाम मसमार की गई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, और उसके बाद जो है वो मॉडल नालों की तरक्की का काम शुरू कर दिया ताकि इन नालों की मदद से शहर जो मानसून और बारिशों के सीजन में जो ज़ेरे आब आता है, गली मोहल्ले और पूरी की पूरी आबादियां जो जद में आती है वो ऐसा ना हो सके, जिसके बायस जो है ये नाले बनाए जा रहे हैं। इन नालों में एक नाला होगा जो कि सिर्फ सेवरेज के लिए मुख्तस होगा, जबकि एक नाला इसमें सिर्फ बारिश का पानी लिया करेगा और उसको पार लगाया करेगा, जिससे शहर में जो आता है बारिश का पानी और जो ज़ेरे आब आते हैं वो इलाके जो है वो बच सकेंगे। लेकिन इसके लिए जो अतराफ में ऑपरेशंस किए गए थे, उस ऑपरेशन में हजारों मकानात तोड़े गए थे। वो मकानात तोड़ने के बाद कहा गया था उन मकान मालकान को 90 हजार रुपए के 6 चेक दिए जाएंगे। वो चेक दिए जाएंगे, फिर वो 4 चेक हो गए, फिर 3,60,000 रुपए की अमाउंट फाइनल हुई और उसके बाद जो है वो 2 साल के अंदर वो तमाम अमाउंट जो है वो 6 महीने के 90 हजार रुपए के चेक के हिसाब से तकसीम किए जाएंगे। फिर अवाम की जानिब से शिकायत मौसूल होना शुरू हुई कि उनको चेक की तकसीम में सही तरीके से नहीं देखा जा रहा। असिस्टेंट कमिश्नर्स की जो किरदार था उस पर भी इलाके मकीनों की जानिब से सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। जब मार्किंग का टाइम आया तो मार्किंग में भी खूब पैसा बटोरा गया ताकि कम से कम मकान जो है वो तोड़ा जाए। कुछ मकान अधूरे छोड़ दिए गए, कुछ मकान पूरे गिरा दिए गए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में अगर ये तमाम मकानात, सवाल ये खड़ा होता है, गैर कानूनी थे तो इन मकानात को तमाम सरकारी इदारों ने कैसे एनओसीज जारी कर दी, इन मकानात के कैसे नक्शे पास हुए,
सुई गैस ने कैसे गैस फराम की। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपना मकान जो टूट चुका है, जिस मकान पे मैं खड़ा हुआ हूं, उसको HBFC से उस मकान पे लोन भी ये लोन बाकायदा तौर पे सरकारी इदारे की जानिब से अप्रूव हुआ। ये अगर गैर कानूनी मकान था तो इसको लोन कैसे दे दिया गया। इस लोन के बाद जो है फिर आप आ जाए कि इस नक्शे पर इनका मकान, ये बताते हैं कि 66 नंबर और 57 नंबर मकान था। नक्शे के मुताबिक ये जायज प्लॉट है, नाला यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इनका मकान तोड़ दिया गया। अब तीसरे इदारे की जानिब आ जाए तो तीसरा इदारा है SBCA का। SBCA ने इनके टूटे हुए मकान का नक्शा भी पास किया हुआ था। बाकायदा तौर पे हर सरकारी इदारे से मुस्तनिद हुए थे ये मकानात जो इन इंक्रूजमेंट के दौरान तोड़े गए हैं। ये मकानात 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए खर्चे के बाद लोगों ने अपने आशियाने बसाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आशानी जो है वो मौजूद ना रहे। ये सूरत हाल है। सुई गैस ने गैस फराम कर दी, किया इलेक्ट्रिक ने बिजली फराम कर दी, वाटर बोर्ड ने पानी फराम कर दिया। अब अगर मैं आपको इलाका दिखाऊं तो जिनके मकानात टूटे हैं, सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ये तमाम मुनहदम कर दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर भी लगाए हुए हैं, उसके बावजूद भी तोड़े गए हैं। DC लीज थी, कैंसिल हो गई, लेकिन फिर इन तमाम मकानात को जिस तरीके से जायज करार दिया गया और लोगों से पैसे बटोरे गए और उसके बाद उनको बेघर कर दिया गया। 90,000 में, जैसे शहरी कहते हैं कि एक दीवार भी अब तामीर नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी कोई दाद रसी नहीं हो रही है इनकी। अवाम चाहते हैं कि ये चेक का सिलसिला बंद किया जाए और इनको कोई ना कोई मुतबादिल जमीनें जो है वो फराम की जाए, जैसे कि न्यू लियारी आबाद करके दिया गया, अलॉटीज को वहां पे प्लॉट्स वगैरह दिए गए। लोग अब मजबूर है, इसी कच्चे मकानात पे पत्थरों पे बैठे हैं, पर्दे लगाए हैं, तरपाल लगा रहे हैं, छीटे लगा रहे हैं, जिसका जितना घर बचा है वो वहां पे मजबूरी गुजारा करने पर मजबूर है। ये हमारे वालिद साहब ने लिया था, 20 साल हो गए इस बात को। जब बना रहे थे उसके बाद भी कोई हमारे कुछ बोलने नहीं आया। पुलिस वाले आते थे, भत्ता लेते थे, बनाने की इजाजत देते, चले जाते थे। जब तोड़ने आए हमने सब कुछ इनको कागजात वगैरह सब दिखाए तो इन्होंने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। हमें ये बोले कि 20 फीट की जगह तुम्हारी बचेगी, उसके बाद तुम्हारे को जो ये तोड़ा जाएगा। हमने ठीक है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो है पूरा तोड़ दिया। और हमारी लेडीज आगे आई तो पुलिस ने उनको धक्का मार के फेंक दिया। लेडीज हमारी बेहोश भी हुई है, मारा गया, उनके सर पे मारा गया, पत्थर मारे गए और इनकी भारी नफरी आई है। हमारी तरफ से कोई भी उनको समझाया थे, समझ नहीं थे, इन्होंने मार के अपना काम पूरा करके चले गए। और चेक के लिए भी इतने धक्के खाए हैं, जब जाके एक ही चेक मिला और उसके बाद जो है लॉलीपॉप भी मिलती रही है, कोई आसरा हमें नहीं मिला चेक का दूसरा। चेक तो इन्होंने इसी तरीके से दिया हमारे को, जैसे लो आओ जाओ, इसमें बहुत परेशानी हुई है चेक लेने में हमको। मगर 60 गज से मेरा मकान था, मैंने 4 लाख रुपया खरीदा था और ये जो खरीदा है मैंने कम से कम 10 साल हो गए मुझे खरीदे हुए। अब वो छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं, किराए पे गया, अब बड़ी मुश्किल हो गई। अब इसके अंदर आगे गुजारा बिल्कुल भी नहीं है हमारा। अब यही रिक्वेस्ट करेंगे हम तुमसे कि इनको आगे बोलो, हमारे को कोई ऐसी जगह दे दो जो वहाँ बैठ जाए अपने लेके बच्चों। इसके अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। 2 भाइयों ने मिलकर लिया था ये 2.5 लाख का मकान, रिहायश थी, काफी बड़ा घर था हमारा, कम से कम 80 गज का। तोड़ते तोड़ते आखिरी में 0 हो गया। अब आसरा ये हमारे को, भाई कोई जमीन दे दे हमारे को और हमें बिठा दे, जैसे लियारी वालों को बिठा दिया। और हमारे को ना पैसे चाहिए 90, ना हमें धक्के चाहिए। नाज़रीन, आइए चलते हैं ब्रेक की जानिब, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाएंगे।